चाहेंगे। तो हम सभी भाई बहनें मिलकर के प्यारे बाप दादा और हम सभी मिलकर फिर से दिलो जान से, नैनों से, वाणी से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। शुक्रिया। और मैं अपनी प्यारी बहन को, अति स्नेही बहन श्रुति बहन को कहूंगी कि आपका 2 शब्दों में लौकिक अलौकिक परिचय हमें सभी को दे। Shanti to everybody. So today in this beautiful gathering of Bap Dada's loving Brahmin children, we are feeling really blessed to have you, Didi Ji, here with us today. Didi Ji is Bap Dada's. We need not be using the words because we understand that this all belongs to you. So she is one of the Preet Buddhis. We have a Anubhavi Murat in between us today. She's a Prapti Swarup soul, and we are completely, confident that we are going to learn a lot from the experiences that you are going to share with us today. Your journey of enlightenment, your journey towards spirituality, towards knowing the self, towards exploring more and more through the Avyaktvani's. So what all I have today to share with all of you about Didi's background. So Didi Ji is the first person to come in Gyan in foreign, and this is back April 1970 in UK. So since then, she has been rendering services. She is a surrendered sister. She has been rendering services in Frankfurt, Germany. She is the former head of the German section of the Brahma Kumaris and the founder of several Raj Yoga centers in Europe. That reminds us with all the wordings that Baba keeps using in her Avyaktvani's, that how hard my children are working in the foreign sections in order to open small centers which are, making, bringing a lot of mics on the world stage. Her speciality lies in building a bridge between the East and the West in the field of spirituality. So Didi Ji has been seen. I was actually looking out for a lot of things over Google, and I found a lot of pictures in which she has been, attending the classes with Dadi Janki Ji. So I'm sure she has a lot to share with that front also. Didi Ji has been doing translations of Avyakt Baba's Vanis also online from Hindi into German, so that the German-speaking citizens, they can easily understand God's language, God's words. So this is all about Didi Ji's, and I'm sure when we get to hear from you, we are going to know more about you. So it's a pleasure to have you, Didi, here. Thank you for making this time out. Welcome. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबके प्यार का, सुजाता बहन और आप प्रभा दीदी, सभी के इतने स्नेह का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। और आपने आज ये मुझे सेवा का मौका दिया। दिल्ली में मैंने बहुत कम सेवा की है, तो जब कभी बहुत टाइम पहले आते थे, पांडव भवन में रुकते थे, तो थोड़ी बहुत क्लासेस कराई हैं, लेकिन आज ये पहला मौका है जो मुझे सेवा का आपसे मिला है दिल्ली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, ब्राह्मण बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आज मैं सोच रही थी कि आज दिल्ली निवासियों से मेरी बात होगी। By the way, sound is okay? Sound is okay? Yes, absolutely Yes. fine. Okay, जी। तो हाँ, मैं सोच रही थी कि कितना जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो कितनी महान, अति अति सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। तो हम सभी को भगवान ने, शिव बाबा ने, बाप दादा ने इतना बड़ा जो हमें भाग्य दिया है, बस उसी भाग्य को हम आपस में शेयर करते हैं, बताते हैं कि मुझे बाबा से अनुभव हुआ। ज्ञान तो है ही, ज्ञान का अथाह खजाना जो बाबा ने हमें दिया है,
और उसके साथ साथ जो रूहानी अनुभवों का खजाना दिया है, तो ये हमारी आत्मा के लिए अनेक जन्मों के लिए जैसे कि वरदान बन जाता है, हमारा अंदर का खजाना होता है। तो जब सुजाता बहन ने मुझे सबसे पहले पूछा कि आप अनुभव सुनाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं कंसंट्रेट करूंगी एक थोड़े बहुत अनुभव सुनाने में, क्योंकि आपने जो अभी इंट्रोडक्शन में कहा वो सब सुनाना तो संभव नहीं होगा। तो हाँ ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। 1970 में, अप्रैल 1970 में, जब हम यूके में थे, हम बचपन से यूके में हैं, और हम सबसे पहले इमिग्रेंट्स थे वहाँ पर। तो जैसे सारे स्कूल में सिर्फ मैं और मेरी बहन ही थे लौकिक स्टूडेंट्स, वहाँ और कोई इंडियंस थे ही नहीं, बहुत बहुत कम थे। तो हम लोग हमेशा फर्स्ट आया करते थे हर सब्जेक्ट में, तो सब हैरान होते थे। तो ये तो आज तक का हमारा अनुभव रहा है कि भारत के जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो या वहाँ जो रहने वाले भी पढ़ाई में बड़े तेज होते हैं। तो ऐसे हुआ कि मेरी जो यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन थी, वो मैं 17 की भी अभी नहीं हुई थी, वो मेरी कंप्लीट हो गई थी। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, और उस टाइम मुझे ज्ञान मिला। तो क्या था कि यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन तो हो गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, हम इतनी यंग एज वाले को नहीं ले सकते, यू हैव टू वेट 1 more year। तो ठीक है, उस जो खाली साल था, ऐसे घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे स्कूल में ही, उन दिनों में मुझे बाबा ने अपना ज्ञान दिया। तो वहाँ कोई सेंटर नहीं था, सबसे पहला लंदन सेंटर भी हमने ही पीछे खोला मिलकर बाकी सबके साथ। तो जब मैं ज्ञान में आई, तो वहाँ कभी मैंने ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं सुना था, कोई सेंटर नहीं था, कोई ब्रह्मा कुमारी देखी नहीं थी। तो एक भाई इंडिया से वहाँ माइग्रेट होकर आए थे, जो बीके थे, अम्बाला सेंटर के शिव कुमार भाई। तो वो अपनी बहन के साथ वहाँ रहते थे, और वो लोगों को ज्ञान सुनाते थे। छोटा सा उनका एक बहुत छोटा सा रहने का स्थान था। तो वहाँ मेरी माता जी, लौकिक माता जी, जो कि फॉरेन की पहली माता हैं जो ज्ञान में आई, तो वो और मैं, हम वहाँ ज्ञान सुनने के लिए गए। तो तब तक मेरी हिस्ट्री ये थी कि मैं कुछ भी रिलीजियस ढूंढ नहीं रही थी। तो इट वॉज जस्ट ए कोइंसिडेंस कि मैंने कहा ठीक है, मम्मी जा रहे हैं ज्ञान सुनने, मैं भी सुन लेती हूँ, ये क्या है, क्योंकि मैं वैसे स्कूल से फ्री ही थी। तो 3 दिन में मेरा कोर्स पूरा हुआ। हालांकि उससे पहले मैं कुछ ढूंढ नहीं रही थी, आई वॉज क्वाइट हैप्पी माई लाइफ। और लेकिन ये जो उस भाई ने ना, वो जो उसके पास सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, ज्ञान की तस्वीरें, जस्ट 1 फोल्डेड पेज था और कुछ नहीं था, वो भी ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी थी। तो उसने, वहाँ त्रिमूर्ति का चित्र था, और उसके ऊपर जो शिव बाबा होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में भी क्या नजर आएगा, है ना, थोड़ा सा डॉट ही, स्पॉट ही नजर आएगा। तो उसने वहां उंगली रख के कहा कि ये परमात्मा है। तो मुझे उस टाइम अनुभव हुआ कि ये लाल रंग का, सुनहरी मतलब लाल रंग का है, और इनसे मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरा पिता मिल गया है। तो मेरे लौकिक पिताजी के साथ ही मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, आज भी है। और तो उस टाइम मुझे लगा कि मैं आत्मा हूँ, और मेरा अविनाशी, हर जन्म में मेरा जो पिता है, ये मुझे मिल गया है। तो 3 दिन में मेरा कोर्स पूरा हो गया, और 3 दिन में मेरी लाइफ ने 180 डिग्री चेंज कर लिया, टर्न, देयर वाज अ टर्न ऑफ 180 डिग्री। तो बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन। तो तब से बाबा के बच्चे बने हैं हम, और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो उस टाइम तो कोई था ही नहीं, कोई सेंटर नहीं, कुछ नहीं। तो क्योंकि अभी मैं सब चीज शॉर्ट में सुनाना चाहती हूँ, तो अभी इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड मैं कहना चाहती हूँ
क्योंकि मैं किसी को देख कर ज्ञान में नहीं आई, क्योंकि वहां कोई थे ही नहीं। तो इसलिए चाहे सारी दुनिया ज्ञान छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं किसी को देख कर नहीं आई। और वो डायरेक्ट जो अनुभव था, तो वहां से बहुत बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। मैं यूनिवर्सिटी भी गई, वहां भी सब कुछ मैंने पढ़ाई को फिर मैंने शॉर्ट किया। मेरा बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट था कि मैं फिजिक्स में रिसर्च करना चाहती थी, तो खैर उसको फिर शॉर्ट किया। तो उस भाई ने एक मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, क्योंकि वो दूसरे शहर में थी, तो उसने मुझे एक बंच ऑफ मैगजीन्स दे दी, ये जो वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन्स उसने मुझे दे दिए। तो मैं सभी मैंने पढ़े, और मैंने वहाँ एक दिन नोट किया कि ये जो सभी वहाँ जो बहनें नजर आती हैं, सभी का हेयर स्टाइल एक जैसा है। तो मेरे तो कट हेयर थे, तो मैंने कहा ये सबका एक जैसा स्टाइल है, तो शायद ऐसा होना चाहिए। तो उसको देखकर फिर मैंने अपना भी हेयर स्टाइल चेंज किया। और फिर वहाँ मुझे वो मुरलियाँ भेजता था, यू नो, आई हैड अ बंच ऑफ मुरलीज आल्सो। तो उसमें मैंने एक बार पढ़ा कि बच्चों को सेवा समाचार मधुबन लिखना चाहिए, बाप को सेवा समाचार भेजना चाहिए। तो मैंने सोचा ये समाचार तो मैं तब भेजूंगी अगर मैं पहले कोई सेवा करूंगी। तो ओके, तो मैंने अपना ही लेक्चर एक ऑर्गेनाइज किया यूनिवर्सिटी में। उसकी फुल प्रेपरेशन मैंने की, बहुत बारीकी से हर चीज को लिखा, कई पेजेस लिखे, 100% उसकी तैयारी की। तो जब वो लेक्चर देने का टाइम आया, मेरे सामने ही मेरे प्रोफेसर बैठे हुए थे, सारा हॉल भरा हुआ था, and I had blackout, you know, I couldn't think of anything, कुछ भी समझ ना आए। और what do I say, मैंने किसी तरह वो टाइम पूरा किया। नदी I was so nervous कि वो जो इतने मैंने कागज अपना सारा लेक्चर तैयार किया था मेरे पास ही था, बट I was too nervous to look at it, ओके। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अच्छा एक और ट्राई करते हैं। वहाँ एक कोई गीता, अंग्रेज लोग उन्होंने कोई अपना एक कमिटी बनाई थी, संस्था, जहाँ वो गीता अध्ययन करते थे। तो मैंने कहा ठीक है, इनको मैं जाके बताऊंगी कि सच्ची गीता क्या है। फिर वही हुआ, फिर मैंने 100% अपना लेक्चर तैयार किया, सब राइटिंग में एवरीथिंग। तो उसको बेशक आप प्रिंट कर लो, यू नो, 100% प्रिपरेशन थी। लेकिन वहाँ फिर वही बात हुई कि आई हैड टोटल ब्लैकआउट, आई कुड नॉट थिंक व्हाट आई हैव टू से। लेकिन फिर भी किसी तरह टाइम पूरा किया। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं कभी कोई क्लास नहीं कराऊंगी, कभी मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगी। तो उसके बाद जब मैं एक बार मधुबन थी, मेरा फर्स्ट विजिट मधुबन था, दैट वाज 1973। तो अव्यक्त बाबा ने, हमारी 11 बार मुलाकात हुई, और उसमें बाबा ने मुझे अपनी तरफ से कहा, कहते हैं अगर तुम्हें कभी कोई क्लास कराने को कहे तो ना करना तो सुजाता बहन पहले कह रही थी कि देखो मैंने ना नहीं किया, तो मुझे बाबा ने कहा है कि कभी भी ना नहीं करना है। तो फिर उसके बाद बाबा ने इतना वरदान दिया, बहुत बहुत वो कभी मौका मिले तो मैं उसकी डिटेल में भी जाऊंगी कि कैसे बाबा ने लेक्चर्स खुद मुझे करना सिखाया, जो भी है। तो आज मैं विशेष आपको, क्योंकि समय को देखते हुए, समय भी इतना नहीं है, तो पहले मैं अपना सबसे प्यारा, सबसे बड़ा अनुभव आपको सुनाना चाहती हूँ। तो ओके, हाँ चलो, उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब मैं सबसे पहली बार मधुबन गई तो दैट वाज 73। तो चलो कैसे मुझे अव्यक्त बाबा पहली बार मिले, उसका बहुत इलाही अनुभव है, कभी शायद दूसरी क्लास हम करें, उसमें मैं ये सब बातें सुना दूंगी। तो उसमें भी बाबा ने मुझे जो बताया कि कैसे मतलब
मेरे मन में था कि मुझे समर्पण तो होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जिसको समझ आ जाए वो समझता है खास करके कुमारियां, कि हमें तो पूरा समर्पण होना है। तो मेरे मन में था कि अगर मैं समर्पण होती हूँ, हालांकि वहां कभी कोई सेंटर नहीं था, ठीक है 73 तक हमने लंदन सेंटर खोल लिया था और दादियां वहां फिर आती थी, तो मुझे पता था कि ज्ञान के मुताबिक मुझे समर्पण होना है। तो फिर मैंने सोचा कि घर वाले जो हैं, खास करके मेरे पिताजी और बाकी भाई बहन, इनको दुख होगा कि ये सन्यास इसने ले लिया, क्योंकि हमारा बहुत प्यार का रिलेशन था। तो बस मेरे मन में सिर्फ वो एक अड़चन थी कि अगर मैं समर्पण होने का स्टेप लेती हूँ तो इनको दुख होगा। तो क्या हुआ, जब मैं मधुबन में थी, मेरा पहला विजिट था, तो बाबा ने मुझे जिस दिन वापस मुझे आना था, तो बाबा ने पूछा, तुम कितनों को सुख देना चाहती हो, 4-5 को या अनेकों को? तो हालांकि मैंने इस टॉपिक पे बाबा से बात नहीं की थी, लेकिन उन्हें पता था। ये ऐसे मेरे अनेक अनुभव हैं कि जो भी मैं सोचती हूँ बाबा को पता होता है। और जब भी अव्यक्त बाबा से मिलन होता था मधुबन में, तो वो हमेशा मेरी हर बात का अपनी तरफ से ही जवाब देते थे। तो जब बाबा ने ये कहा कि कितनों को सुख देना चाहती हो, 4-5 को या अनेक को, तो इसके जवाब में मैंने अपना जीवन समर्पण किया। तो उस समर्पण जीवन की भी बहुत सुंदर कहानी है। तो बाबा ने हमें कितने सेंटरों के निमित्त बनाया, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया, मतलब यह सारा जो यूरोप है, सेंट्रल यूरोप। तो खैर, तो वो भी कभी मौका होगा तो सेवा के विस्तार में भी सुनाऊंगी आपको। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको अपना एक विशेष अनुभव सुनाना चाहती हूँ। तो वो क्या था कि मैंने बाबा को मन से कहा, सिर्फ एक बार नहीं, कई बार मन से, मैं आपका अनुभव करना चाहती हूँ। तो ज्ञान तो था, समझ तो पूरी थी कि भगवान कौन है, लेकिन मैंने कहा मैं आपका अनुभव करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, बाबा ने मुझे अपना अनुभव कराया। मुझे टोटल में बाबा ने अपने 5 अनुभव कराए, और वो 1.5 साल कह सकते हैं, इस ड्यूरेशन के अंदर, मतलब इस टाइम स्पैन के अंदर मुझे 5 अनुभव बाबा ने कराए। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि ये 5 ही होंगे, और लेकिन 5 के बाद वो खत्म हो गए। और हर अनुभव जो था वो कोई 20-25 मिनट तक रहा। और जिस दिन भी वो अनुभव हुआ, मुझे पता नहीं था कि आज ये अनुभव होगा, माना इट वॉज अचानक, जैसे सडनली, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन वो अनुभव आया। तो सबसे पहला अनुभव क्या था, मैं बैठी हुई थी यहीं जर्मनी में, मुझे अथाह शांति का अनुभव हुआ। हालांकि मैं शांति को ढूंढ नहीं रही थी, मैं सोचा करती थी कि शांति का मतलब है जहां अशांति ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अशांति का ना होना ही शांति नहीं है, लेकिन शांति स्वयं में भी एक बहुत 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 सुंदर एक गुण है। तो ये मुझे अनुभव हुआ। वो इतना बड़ा अनुभव था, जैसे कि सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स, इस पीस, ये जो इलाही ईश्वरीय जो शांति थी, उससे सारा यूनिवर्स भरा हुआ था, बेहद। तो ये जब इतना अनुभव हो रहा था, तो उस टाइम मुझे एक विचार आया कि मेरा जो स्कोप ऑफ इमेजिनेशन है, जिस हद तक मैं सोच सकती हूँ, माई स्कोप ऑफ इमेजिनेशन, वो कम था। मुझे नजर आया, जैसे मैंने देखा, अनुभव से देखा कि मेरा जो अपना हेमिस्फीयर,
ऑफ इमेजिनेशन है वो उसके अंदर है, माना उससे कम है, और जो मैं अभी अनुभव कर रही हूँ वो उससे अनेक गुना ज्यादा है। तो नॉर्मली मैं सोचा करती थी कि हर इंसान बहुत इमेजिन कर सकता है, जैसे हम कोई भी चीज बहुत इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव हमें उसका जस्ट ए फ्रैक्शन होगा, बहुत थोड़ा अंश ही उसका हमें अनुभव हो सकेगा। तो मैं हैरान थी कि क्या मेरी इमेजिनेशन लिमिटेड है, कि मैं सोचा करती थी इमेजिनेशन हर एक की बेहद की होती है। लेकिन ये अनुभव जो था, सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स सिर्फ एक पीस, एक शांति के वाइब्रेशन से ही भरा हुआ था। तो ठीक है, ये 20-25 मिनट ये अनुभव रहा, तो फिर चला गया। कुछ देर बाद, माना ये जैसे पांचों अनुभव 1.5 साल, अब कहें 1.5 शायद 2 साल लगे होंगे, लेकिन ये 1.5 साल कह सकते हैं, इस ड्यूरेशन में हुए। अगला जो अनुभव मुझे हुआ वो था खुशी का अनुभव। इतनी खुशी, एक खुशी के वाइब्रेशन, मैं उसमें हंस नहीं रही थी, लेकिन वो इतना अनुभव था जैसे फिर वही उतना ही बड़ा, जैसे सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स उससे भरा पड़ा है, सिर्फ एक ही वाइब्रेशन है, खुशी। और 20-25 मिनट रहा, और उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं था कि अभी कम है फिर ज्यादा है, नो, कांस्टेंट। तो बड़ा सुंदर अनुभव था। फिर मुझे हैरानी हुई कि मेरा इमेजिनेशन का जो स्कोप है ये कम था, और जो मैं अनुभव कर रही हूँ उससे बहुत 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 बड़ा है। अच्छा, फिर मुझे क्या हुआ, एक बार फिर बाबा ने अपना अनुभव कराया, प्रेम का अनुभव। प्रेम का अनुभव असल में पहले हुआ था, खुशी का उसके बाद हुआ था। तो फिर वैसा ही, उतना ही बड़ा, माना ये जो पांचों गुण बाबा ने अपने अनुभव कराए वो इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, माना उनका ऐसे नहीं कि एक ज्यादा है कि कम है, नहीं, इक्वल थे और बेहद तक थे। तो अच्छा, प्रेम का अनुभव फिर वैसे ही, जैसे सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही वाइब्रेशन से भरा हुआ है। तो जब ये मुझे अनुभव हुए, तब से मुझसे कहा नहीं जाता कि भगवान प्यार का सागर है या शांति का सागर है, क्योंकि सागर तो एक धरती पर छोटा सा एक स्पेस लेता है। हालांकि हमारे लिए सागर भी बहुत है, लेकिन वो जो मेरा अनुभव था वो इट वाज जस्ट बियॉन्ड ऑल। अच्छा, फिर एक बार क्या हुआ, मुझे सर्वशक्तिमान का अनुभव हुआ। माय गॉड, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। कुछ भी भूल नहीं सकते बाबा के सभी अनुभव, कैसे हमारे लिए अमर छाप हैं हमारे मन पर। तो क्या था, मुझे उस दिन सर्वशक्तिमान का जो अनुभव हुआ, तो मैं बैठी हुई थी, मुझे क्लास कराना था और कुछ ग्रुप मेरे सामने था, तो मैं सामने बैठी योग कर रही थी। तो अचानक ये सर्वशक्तिवान का अनुभव शुरू हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पहले नहीं पता होता था कि आज ये अनुभव होना है, लेकिन वो अचानक हुआ। तो मेरा इट वाज लाइक ए लिफ्ट ऑफ पावर, जैसे ना, जैसे कोई ऐसी लिफ्ट है पावर की, है ना, फेगल ऑफ पावर यू कैन से। तो वो बढ़ने लगा। तो जैसे ये मनुष्य लेवल है और उसके ऊपर मैं दुर्गा लेवल पर पहुंची। मैं फॉर ए फ्यू सेकेंड्स मैं खुद दुर्गा के, श्री दुर्गा के रूप में थी खुद। जैसे मैंने वो लाल साड़ी पहनी हुई है, शेर पर सवारी है। हालांकि मैंने दुर्गा जी के बारे कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम छोटे होते ही यूके में आ गए। मैं खास कोई भक्ति में खास नहीं थी, आई लव्ड इट, लेकिन हम बचपन में ही मतलब इन चीज़ों में आ गए, तो मैंने कभी इतना सोचा नहीं था उनके बारे में। तो अचानक मैं खुद वो दुर्गा के रूप में थी। और वो फिर ये जो था, ये जो पेगल माना लिफ्ट आप कह लें, पावर की लिफ्ट जो थी, ये बढ़ती जा रही थी, ऊपर ऊपर जा रही थी। तो उसके बाद दुर्गा लेवल के बाद
जैसे नीचे ह्यूमन लेवल है, ये हाँ उसके ऊपर दुर्गा लेवल है, उसके ऊपर बेअंत बेअंत मैं कहूँ आपको, वो शक्ति जो ईश्वरी जो शक्ति है, जो कहते हैं ना वो सर्वशक्तिवान है, बाबा ने मुझे वो अनुभव कराया, सिर्फ जाना नहीं, जानते तो हम सब हैं। तो वो ये जो लिफ्ट ऑफ पावर, जैसे एक बड़ी सी और बड़ी स्पीड से ऊपर जा रही थी, तो एक बार मुझे लगा कहीं मैं फट तो नहीं जाऊंगी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लोड, लेकिन नहीं, वो डर भी बाबा ने ले लिया, फिर कोई संकल्प नहीं, वो इतनी पावर, माय गॉड, इतनी वो पावर थी। तो ये जो पेगल ऑफ पावर, जो लिफ्ट ऑफ पावर आप कहें, ये बड़ी हाई स्पीड से ऊपर जा रहा है, और जब हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स तक पहुंचे, जैसे यूनिवर्स का जो सेंटर है वहां जैसे पहुंचने वाले थे, तो ये इसकी स्पीड कुछ कम हो गई, लेकिन धीरे धीरे आते आते वो वहां आके रुक गया, माना मैं रुक गई वहां आके। अमेजिंग। तो वहां जब मैं रुक गई आकर, बाबा मुझे अनुभव तो तब होगा ना जब मैं खुद वो अनुभव करूं, तो बाबा मुझे बता नहीं रहे कि देखो मैं कैसा हूं, वो मुझे वो अनुभव दे रहे थे। तो वहां जब मैं आके रुक गई, तो वहां से जो ये सर्वशक्तिवान की जो शक्ति है वो सारे यूनिवर्स में पहुंच जा रही थी, कोई जर्रा नहीं था इस यूनिवर्स का जहां वो ना पहुंचे। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। कोई जर्रा उस शक्ति से अछूता नहीं था। तो फिर वहां सिर्फ एक संकल्प मुझे बाबा ने दिया कि वो नीचे धरती पर जो इतने एटम बॉम्ब्स हैं, इतना डिस्ट्रक्टिव पावर जो है, ये जो सारे जो नीचे धरती पर ये एटम बॉम्ब्स हैं, इन सबको मैं खाली माचिस की डिब्बियों की तरह अपने लेफ्ट हैंड से आई कैन जस्ट क्रश देम, मैं ऐसे ही उनको कैसे क्रश निचोड़ सकता हूँ या सकती हूँ। I can just crush them with my left hand like empty matchboxes. तो क्या वो सर्वशक्तिवान का अनुभव था, माय गॉड। तो क्या हुआ जब ये चल रहा था, क्योंकि मैं क्लासरूम में बैठी हुई थी, तो एक बहन जो पहले कभी नहीं आई और पीछे भी कभी नहीं आई, वो आ गई, क्योंकि दरवाजे खुले होते हैं, हम जब योग में बैठते हैं दरवाजा खुला छोड़ देते हैं ताकि किसी को उठ के दरवाजा ना खोलना पड़े। खैर, तो वो एक माता आके बिल्कुल मेरे सामने आके कमरे में क्लासरूम में सामने आकर बैठ गई, और बड़ी बड़ी आंखों से खुला, ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से वो देख रही थी। तो एक बार उसने पूरा प्रणाम भी किया, मैं कहा चलो कोई नई आत्मा है। तो अच्छा, फिर क्या हुआ, वो बैठी रही और मैं अपने अनुभव में थी। और फिर क्या हुआ, ये जैसे नहीं योग पूरा होता है वो लाइट बदल देते हैं, लाल से वाइट हो जाती है कि जब भी बोलना है। तो फिर क्या हुआ, मुझे संकल्प आया अच्छा बोलना है। आज मैं सोचती हूँ उस दिन मैं क्लास ना कराती और इसी अनुभव में ही रहती, लेकिन 20-25 मिनट वो भी अनुभव रहा। तो फिर ये टाइम हो गया कि जी अब कुछ सुनाना है, तो उसी मैंने 2-4 शब्द ही बोले, खास नहीं। तो अब फिर क्या हुआ, ये जो मैं तो ऊपर थी, द सेंटर ऑफ यूनिवर्स मीन्स पावर, यू नो, विद माय पावर वाज दैट मच। तो धीरे 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 वहां से उतरना शुरू हुआ, और जब मैं नीचे आई मतलब धरती के लेवल पर, तो जहां मुझे बैठी हुई थी, तो मेरी जो पावर थी, जिसको आप ऑरा कह लीजिए, एनर्जी फील्ड कह लीजिए, वो वहां तक वापस नहीं आया जहां से वो शुरू हुआ था। इट वॉज स्प्रेड लाइक इन द होल स्टेट ऑफ हेसन, जिस स्टेट में मैं रहती हूँ। जैसे आप कह लीजिए दिल्ली, जैसे
10 दिल्ली इकट्ठी कर लें, इतना एरिया अगर हो, वहां तक वो एनर्जी फैली रही, उससे ज्यादा वो वापस नहीं आ सकी। खैर, तो थोड़ी सी मैंने क्लास कराई, सब चले गए। तो ये जो लेडी आई थी, इसने ये आके बोली, जर्मन में बोली, तो कहती है मैंने तुम्हारा ऑरा देखा था, इट वॉज ब्राइटर देन 1000 सन्स टुगेदर, माना हजारों सूर्यों से ज्यादा तेजोमय तुम्हारा ऑरा था। मैं तो बाबा का अनुभव कर रही थी, तो मुझे मालूम था, क्योंकि आई वॉज एक्सपीरियंसिंग व्हाट शी वॉज सेइंग। तो वो चली गई। जैसे मैंने पहले बताया, ना वो पहले कभी आई थी, ना वो पीछे कभी आई। तो जैसे बाबा ने किसी को निमित्त बनाकर सिर्फ ये एक सेंटेंस कहने के लिए भेजा था। अच्छा, फिर ये अनुभव भी चला गया। और एक दिन मैं बेल्जियम में थी, वहां मैं बैठी हुई थी सेंटर में, अकेली थी। तो अचानक ये अनुभव शुरू हो गया। वो अनुभव था अनुभव ऑफ नथिंग, नथिंगनेस। आई वॉज एक्सपीरियंसिंग नथिंगनेस, में कुछ भी नहीं, एम्प्टीनेस, खाली खाली। तो मैं हैरान कि ये कैसा अनुभव है, जस्ट एम्प्टीनेस, उसमें ना दुख है ना सुख है, कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। तो ये भी बहुत उतना ही बेहद में फैला हुआ था। ओके, ये भी उतना ही लंबा टाइम रहा, ठीक है। तो ये सब पूरे हो गए, और फिर काफी टाइम और कोई नया अनुभव नहीं आया। तो मैं सोचने लगी कि जरूर मैंने कोई गलती की है कि बाबा ने अब मुझे और अनुभव कराना बंद कर दिया है। काफी टाइम में ये सोचती रही कि जरूर मैंने कुछ गलती की है। तो अब मैं स्विट्जरलैंड में थी, तो खैर हम यहाँ चारों तरफ घूमते रहते थे। तो अचानक जैसे बाबा ने ऊपर से जवाब दिया, ब्रह्मा बाबा का चेहरा था, हमेशा वैसे ही होता है। और उसमें जैसे शिव बाबा हैं, तो वो उनके थ्रू कह रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा इतने ही हैं। तो ये जो बच्चे इतने ही हैं, मतलब ये जो 5 मुझे अनुभव हुए, तो बाबा ने जैसे कहा इतने ही हैं। क्योंकि मेरा शुरू में मैं कहती थी बाबा मैं आपका अनुभव करना चाहती हूँ, तो फिर बाबा ने बताया कि इतने ही हैं, ठीक है। तो वो फिर ख्याल निकल गया कि मैंने शायद कोई गलती की है, वो ख्याल निकल गया। तो कुछ दिन बाद अचानक मुझे समझ में आया कि ये जो 5 तत्व हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इनका जो भगवान को जो हम कहते हैं रचिता है, तो वैसे तो हम ज्ञान में कहते हैं कि उन्होंने कभी प्रकृति को रचा नहीं है, लेकिन उसकी डिटेल में हम पीछे जा सकते हैं। लेकिन मुझे फिर अचानक जैसे ये अनुभव हुआ या समझ में आया कि ये जो 5 गुण बाबा ने अपने मुझे दिखाए, ये इन 5 तत्वों की जो रचनात्मक शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, ये उससे रचे गए। हालांकि ऐसा कोई टाइम नहीं था कि प्रकृति नहीं थी, क्योंकि भगवान रचता सदा था, उनकी वाइब्रेशन सदा थी, तो उनका इफेक्ट मीन्स क्रिएशन ऑफ मैटर, यह भी मेरा पर्सनल व्यू है, ये सदा था। तो फिर मुझे समझ में आया कि जैसे ये जो मैंने बेहद बेहद, मैं सागर नहीं कह सकती, हालांकि हमारे लिए सागर भी बहुत बेहद का है, लेकिन अच्छा, ये बेहद की जो शांति थी, ये जैसे जल तत्व की, इससे जल तत्व की रचना हुई। माने ये जो जल है जो हम पीते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन जैसे नहीं हमारे कहा जाता है, जैसे बाबा कहते हैं कि तत्वों की भी सेवा करो। अगर ये सिर्फ स्थूल चीजें हों तो इनकी सेवा कैसे होगी? तो इनमें भी कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस तो है। खैर, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। तो
तो मुझे ऐसे जैसे मैं समझ में आया कि ये जो अथाह शांति का जो मैंने वो देखा, अनुभव किया, शांति की एनर्जी, एनर्जी ऑफ पीस, लिमिटलेस, उससे जैसे जल तत्व की रचना हुई। और वो जो खुशी का अनुभव था, बेहद बेहद की खुशी, वो जैसे वायु तत्व की रचना उससे हुई। तो जैसे हम जब सांस लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, तो जैसे बाबा ने भी कहा है, जो खुश है खुशी ही जीवन है। सबसे बड़ा जो हमारा धन है जीवन का वो खुशी है। तो खुशी जो का जो अनुभव, तो खुशी जो ईश्वरी जो खुशी है बेहद की, बेहद तो उससे जैसे कि ये वायु तत्व जो हमें जीवन देता है उसकी रचना हुई। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। तो फिर वो जो बेहद का जो प्यार था उससे जैसे अग्नि तत्व की रचना हुई। तत्व मैं कह रही हूँ, जैसे नॉर्मल फायर होती है उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन उसके पीछे ये जो ईश्वरीय चीज है, जैसे ना अपने हिंदुइज्म में मानते हैं कि ये सब देवी, ये सब देवता हैं, अग्नि देवा, वायु देवा, है ना। तो खैर वो कभी क्लास करा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और तो अग्नि तत्व मतलब प्रेम, जैसे ना किसी के दिल में प्यार होता है, कहते हैं हाँ दिल इनका ठंडा नहीं है, इनमें मतलब प्यार है। तो अग्नि तत्व। और वो जो सर्वशक्तिमान का जो अनुभव हुआ, वो जैसे कि ठोस पदार्थ, ठोस कहते हैं जिसको पृथ्वी हम अपनी भाषा में पृथ्वी कहेंगे, जल वायु पृथ्वी, ऐसे नहीं गिना जाता है, 5 तत्व किए जाते हैं। तो इसका जो मतलब ठोस पदार्थ, अभी इतनी शक्ति, ये तो हमें आइंस्टाइन के ये जो था फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, E इज इक्वल टू mc², माना एनर्जी जो है ये मतलब जो मैटर है, थोड़ी सी मैटर में एनर्जी बहुत होती है, वो दैट इज साइंटिफिक पार्ट। और वो जो मुझे अनुभव हुआ था खालीपन, नथिंगनेस, तो मैंने सोचा अच्छा ये फिर आकाश तत्व है, क्योंकि एम्प्टी स्पेस भी चाहिए। नहीं, जैसे हमारा हम सोचते हैं और दूसरा व्यक्ति कुछ और सोचता है, तो दोनों को अपनी अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी एक स्पेस चाहिए, हर चीज को अपना स्पेस चाहिए। तो अगर हर जगह में भरी हुई होगी किसी न किसी चीज से, तो फिर किसी के लिए वो फिर क्या कहते हैं उसकी जो उसका एनर्जी फील्ड है वो भी कहाँ एक्सपेंड होगा, है ना। तो एम्प्टी स्पेस जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं या अंग्रेजी में ईथर कहेंगे, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो है ये है, तो आकाश तत्व है ना, उसका एनर्जी कंपोनेंट है। तो अब मुझे ये इतना अच्छा लगता है। देखिए हम चाहे योग करें या ना करें, बाबा तो सदा है ना। जैसे सूरज आकाश में है, हम धूप में बाहर जाएं या ना जाएं, लेकिन वो तो सदा चमक ही रहा है। तो बाबा सदा है, ऑल माइटी परमात्मा, जो ये सदा ये वाइब्रेशन हमेशा उनसे निकल रही है, हमेशा, चाहे हम उनसे योग लगाएं ना लगाएं, वो तो जो है सो है ना। तो माना शिव बाबा जो हैं परम पिता परमात्मा, उनसे ये जो बेहद की ये जो एनर्जी निकल रही है, शांति, खुशी, प्रेम, हाँ जी, ये सर्व शक्तियां, तो ये जो एनर्जी का जो प्रवाह है जो सारे यूनिवर्स तक फैला हुआ है, तो इसमें हम नहाते रहें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम नॉर्मली हम कहते हैं योग है जी, मुझे पॉइंट बनकर पॉइंट को याद करना है, हम इस पर भी कभी क्लास कर सकते हैं कि ये पॉइंट होना, ये लाइट होना, इसका क्या मतलब है, इसको हमें कैसे समझना है, उसका अपना बहुत भारी महत्व है। लेकिन जो शिव बाबा है, बेशक उनका रूप वो पॉइंट हो, लेकिन उनकी जो पावर है, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो तो बेहद तक फैले हुए हैं।
तो जिसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी आप कह लीजिए, है ना, जो लोग ज्ञान में नहीं भी होते लेकिन उनको ये थोड़ा होता है कि कॉस्मिक एनर्जी है, उससे हम अपने आप को कनेक्ट करें। तो हम तो बाबा के बच्चे, हम सब कुछ जानते हैं, तो क्यों ना हम भी सदा इस बेहद के वाइब्रेशन का जो सागर कह लीजिए, ये जो यूनिवर्स है, इसमें हम सदा नहाते रहें, सदा। तो कितना अच्छा होगा। तो जहां जहां भी ये वाइब्रेशंस आएंगे, हैं, जब हम इस योग के अनुभव में होंगे, तो वहां पर हीलिंग तो होगी ही। हमारी आत्मा में, अब सभी की आत्मा में इतने जो हमने जन्म लिए हैं, तो कोई ना कोई दुख के जख्म वगैरह हैं, तो उनको मिटा देना। जैसे भगवान को कहते हैं दुख हरता सुख करता, तो वो हम अभी इस योग के अनुभव से ये हम अनुभव करें कि कैसे मैं जब इस वाइब्रेशंस में मैं नहाता हूँ। हम ये भी सोच सकते हैं जैसे झरना बह रहा है मेरे ऊपर, और झरना है जी, शांति का, खुशी का, प्रेम का। तो सिर्फ झरना तो चलो छोटा होता है, वो भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। और जैसे हम इन वाइब्रेशंस में जब चाहें हम इसमें नहाते रहें, तो ये जो बाबा कहते हैं ना सदा योग लगा रहे, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का योग, बाबा के वाइब्रेशंस में नहाते रहना, ये हमारा सदा का हो सकता है। और तो ऐसे ब्राह्मण बच्चे के लिए, ब्राह्मण हम जो बाबा के अति 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 सौभाग्यशाली, पद्मा पदम, पद्मा पद्म जितनी बार आप कहो, पद्मा पदम, जो हम सौभाग्यशाली हैं, तो हमें अनुभव होगा कि सचमुच मैंने कितना बेहद का खजाना पाया है। जो पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा, ये हमें तब अनुभव होगा। नहीं तो क्या है, हम सोचते हैं, ज्ञान की तरह से सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मिला, वो भी ठीक है, लेकिन अनुभव होना वो एक बहुत सुंदर चीज है। तो जैसे मैं कह रही थी कि बाबा तो सदा हैं ही, उनके वाइब्रेशन सदा ही हर जगह फैले हुए हैं। तो जो जिसको भी उनसे कनेक्ट होना आता है, तो वही योगी है। हम दुनिया में कहीं भी रहें, दुनिया तो बहुत छोटी सी है, कहीं भी हम रहें, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो मन है इस अनुभव में सदा डूबा रहे। तो एक ये चीज है। अभी टाइम मुझे मालूम नहीं, आई थिंक वी आर नीली ओवर द टाइम। तो आई थिंक शायद 10 मिनट बचे हैं। तो कोई आप ना टाइम कॉन्शियस मत हो जाए। तो अगर आपके पास समय है तो मेरे आप थोड़ी पास, कोई एक धारणा की बात भी बता दीजिए, जैसे अमृत वेले का महत्व, मुरली का महत्व, जैसे अभी आप एक पॉइंट आउट कर रहे थे, बिंदु स्वरूप का क्या अनुभव होता है, हाँ जी, तो भी हाँ आप जी, थोड़ा शेयर करें। जी जी सब जी, सुन रहे आपको ध्यान से बहुत। हाँ जी। तो क्या है, मुझे मुरली सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे उसमें परमात्मा का हमेशा, बाबा का हमेशा प्यार महसूस होता है, क्योंकि वो हमें शिक्षा जो देते हैं, तो उसके पीछे उनका कारण तो उनका हमारे प्रति प्यार ही है। जिसके लिए आपको प्यार होता है, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको शिक्षा देते हैं। तो बाबा की शिक्षा मुझे हमेशा उनका प्यार का इजहार लगता है, क्योंकि प्यार को व्यक्त करने का तरीका है। और एक और चीज जो मैं हमेशा सोचती हूँ, जब भी मैं बाबा के महावाक्य सुनती हूँ, तो मैं उस स्थिति को भी अनुभव करना चाहती हूँ, उस स्थिति को मैं इमेजिन करना चाहती हूँ जिस स्थिति से ये शब्द बोले गए। तो उन शब्दों को सुनते सुनते भी हम उस स्थिति पर आ जाते हैं कि क्या
तो कितनी ऊंची स्थिति है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो ये स्थिति ही हमारे साथ अगले जन्म में जाएगी। ज्ञान तो हम भूल जाएंगे, लेकिन ये जो स्थिति है, ये जो रूहानी जो स्टेज है जी, उसको मुझे अनुभव करना हमेशा अच्छा लगता है। और बाकी ये जो बाबा ने हमें डिसिप्लिन दिए हैं कि हमें अमृत वेले उठना है, वैसे तो देखा जाए दिन हो रात हो, हम उस हम सागर में समाये रहते हैं, कम से कम उधर लगाव रहता है किसी में समाये रहना है, लेकिन फिर भी जो हमें बाबा ने डिसिप्लिन दिए हैं तो इनका बहुत भारी महत्व है। ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के भी रूल्स होते हैं, जो रूल्स को फॉलो करेगा वो ठीक रहेगा, और अगर हम रूल्स को भूल जाएं तो एक्सीडेंट करते रहेंगे। तो क्या है कि ये जो नियम दिए हैं कि अमृत वेले उठना है, बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं, जैसे माँ होती है प्यार से कहते बच्चों उठो, अब ज्यादा नहीं सोना। अच्छा, उसमें हम बैठते हैं, फिर बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो जो भी जीवन की मर्यादाएं हैं जो बाबा ने कही हैं, ये जैसे कि ड्राइविंग के रूल्स हैं, हमें रूल्स को तोड़ना नहीं है जी। माना जो है ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए कहा गया है। नहीं तो हम कह सकते हैं मैं मुरली कभी भी पढ़ लूं, कभी भी कर लूं, नहीं, जिन जिन चीजों को बाबा ने महत्व दिया है, जैसे संगठन का महत्व है, तो बाबा ने संगठन का महत्व क्यों दिया, इस पर भी कभी हम डिटेल में जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे बचाव के लिए हैं, क्योंकि देखिए ये जो अच्छी स्टेजेस की अभी हम बात कर रहे हैं, ये सदा तो नहीं रहती है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, तो डिप्रेस तो खैर नहीं होते आई होप, लेकिन उदासी आ सकती है जी, भी होता है भी क्या करना। अच्छा, एक बार तो थोड़ा हम खिसकना शुरू हुए तो खिसकते जा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे हो कि नहीं, मुझे डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना, तो उससे हमारे में शक्ति आएगी। हाँ, शक्ति, क्योंकि ये भी मुझे एक बार बाबा ने कहा था, हम बाबा के मुरलियों में भी सुनते हैं कि 3 चीजों का महत्व है, स्नेह, सहयोग और शक्ति। हमें स्नेही भी होना है, वो तो हम हैं ही, क्योंकि ऐसा जो है दिलवर, उससे किसको मोहब्बत नहीं होगी। हम तो आशिक हैं उनके, ईश्वर का आशिक होना कितना बड़ा सौभाग्य है। तो वो तो हम हैं ही, और आपस में भी स्नेह रखना है, क्योंकि जिनके साथ सारा कल्प हमें रहना है, बाबा के बच्चे, बाबा का परिवार, कोई भी हो, कोई भी आत्मा हमारे सामने आ जाए, सभी से स्नेही रहना है, बाबा के काम में सहयोगी होना है, और शक्तिशाली। तो शक्ति कहाँ से आती है, ये डिसिप्लिन से आती है। और सारी जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, क्योंकि खिसकना बड़ा इजी होता है। जैसे हम ड्राइविंग का मैं उदाहरण देती हूँ, हम ड्राइव कर रहे हैं, हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ऐसे भी चला सकता हूँ, थोड़ा मतलब अपनी मन मर्जी कर ली, तो एक्सीडेंट होने की संभावना वही होती है जहां हम डिसिप्लिन माना वो रूल को छोड़ते हैं। तो एक्सीडेंट माना दुख का आना, खिसकना, तो हम ये कमजोरी की बातें अब छोड़ दें। लक्ष्य तो हमारा है मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का। तो इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल में अगर आप चाहेंगे, आपके पास समय होगा तो जरूर हम डिटेल में बातें करेंगे। तो अभी मैं चाहूंगी अगर किसी ने चैट में कुछ अपने सौरभ भाई, आई थिंक उनका नाम है, जो ये सब अभी टेक्निकली कर रहे हैं, वो फिर मुझे आपका सवाल या जो भी आप कहना चाहें मुझे पढ़कर सुना देंगे। और जी, नाउ आई एम साइलेंट। तो आप चाहें तो जी, जैसे भी जो लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, जैसे भी आप इसको यूज करना चाहें। तो टोटल हर बात तो मैं आज बता नहीं सकी, और क्योंकि वो तो सारे जीवन की बातें हैं, तो सुबह से बैठेंगे शाम हो जाएगी।
और क्यों नहीं, दिस इज एन एंडलेस स्टोरी। जी, ऐसी कहानी जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ वो चीज एंडलेस ही अच्छी लगती है। तो ठीक है जी, तो इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे समय दिया और बातों को सुना, ईश्वरीय जो अनुभव हैं, तो जो बाबा ने मुझे कराया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि ये आपके जीवन का भी एक अभिन्न अंग बन जाए। हो सकता है आपको खुद भी ऐसे या इन जैसे ही बहुत अनुभव हुए होंगे, क्योंकि वरदाता के हम बच्चे हैं, तो सारे वरदान वो हमेशा हमारी झोली में डालते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति सुमन दीदी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे लगे आपके अनुभव, जो आपने 5 गुणों का विस्तार किया। हमें बहुत अच्छा लगा, सभी भाई बहनों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। तो कहते हैं कि कोई आत्मा निमित्त बनती है अनेक आत्माओं की सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ चाबी का कमाल है। चाबी ने आज इतनी आत्माओं को जोड़ा। पहले तो आपके साथ कनेक्शन जुड़ा और फिर आपसे अनेकों के साथ कनेक्शन जुड़ा। ये चाबी जो है ना, बड़ी जादू वाली है। ये चाबी ने ही सबको मिलाया है ना। बाबा भी चाबी का ही लालच देता रहता है हाँ जी। ना? तो ये चाबी निमित्त बनी हमारा आपका संबंध जोड़ने के लिए। चाबी निमित्त बनी आज अनेक आत्माएं आपकी मुख वाणी के द्वारा बाबा का संदेश सुन रहे हैं। सबको आपने जर्मनी का सैर करा दिया। थैंक यू। तो आपका फिर से दिल्ली दरबार में बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स जो शुक्रिया। आपने हमें समय दिया और कम समय के अंदर आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। दोबारा इससे आपका बहुत बहुत थैंक। शुक्रिया। ओके, हम शांत। Om Shanti Smriti. So during the session we have received few questions, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपने ड्यूरिंग द क्लास ही आंसर कर दिया हमारा। The other question is that any inspiring moment with Dadi Janki that you fondly remember and would like to share with us? Yeah, shall I speak in English or Hindi? Hindi. जी, तो दादी के साथ तो मैं रहती थी लंदन सेंटर में, और हाँ, तो नेचुरली दादियों के साथ जब इंसान रहता है तो दिन रात उन्हीं के साथ रहना तो बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। तो ओके, सबसे पहला ऐसे था कि दादी भी अभी वहाँ लंदन में नए ही आए थे, तो अचानक उन्होंने क्लास में मुझे पूछा सबके सामने विदाउट एनी बैकग्राउंड टॉक, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगी या जर्मनी जाओगी? तो मतलब समर्पण होना है। तो हम उस टाइम जब हम ज्ञान में आए थे तो समर्पण होना वन वे ट्रैफिक था। मतलब यज्ञ में आना इज वन वे ट्रैफिक। ये नहीं कि आप आ गए फिर वापस चले गए फिर आ गए, ऐसे नहीं। यू कमिंग वंस फॉर एवर। तो माना समर्पण की बात थी। तो सबके सामने ऐसे ही पूछा, ऑस्ट्रेलिया जाओगी या जर्मनी? तो मैंने कहा जर्मनी। कहते ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं? मैंने कहा क्योंकि जर्मनी नजदीक है। तो खैर, तो उनका नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो सबसे पहला मेरा जो सेंटर था जिसमें मैं खुद रही वो सिडनी सेंटर था, और फिर उसके बाद हुआ फिर दोबारा में, आई मीन लॉन्ग स्टोरी। तो कुछ साल के बाद फिर मैं जर्मनी आई। तो दादी के साथ मेरा हमेशा अच्छा अनुभव रहा। तो एक बार जर्मनी में हमने दादी को बुलाया था और मैं खुद ही ड्राइव कर रही थी, और कितनी जगह हमें जाना था। तो मुझे अभी मैं रोड मैप पढ़ूं या मैं ड्राइविंग करूं और टाइम पर पहुंचना भी है। तो क्या था, मुझे रास्ता नहीं आता था।
तो मैं हैरान होती थी जब भी मैं कार को रोक के पूछती थी जो सड़क पे चलने वालों को, जी ये कहाँ है? अब कहते मैडम यू आर ऑलरेडी हियर। तो जिस मकान पर पहुंचना होता तो वहीं आके पैसे बाबा कार रोकते थे, तो हम जाते थे। तो एक बार हुआ, मैंने कहा व्हाट ए कोइंसिडेंस, लेकिन दूसरी बार भी ऐसे हुआ, तो इट वाज क्वाइट नाइस। तो दादी को हमेशा अच्छा लगता था कि उनके मैं साथ बैठकर उनकी ट्रांसलेशन करूं, एंड आई लव हर वाइब्रेशंस। दादी का वाइब्रेशन मुझे बहुत प्यारा लगता था, वेरी जेंटल, वेरी सॉफ्ट, एंड और यह हमारा बहुत जैसे कि नजदीकी का रिश्ता था। और हाँ, नहीं दादी हमेशा मेहमा की भी करते रहती थी। अभी वो मेहमा तो मैंने अभी नहीं सुना नहीं। तो दादी के दिल में प्यार बहुत था, और विशेषता दादी की ये थी कि वो दूरंदेशी बहुत थे। जैसे विदेश में जो इतनी सेवाएं हुई हैं, तो दादी जैसे सभी बहनों को जो भी होता था निमित्त बनाकर भेजते रहते थे। और हाँ, एक बात वो कहते थे कि तुमने कभी कोई हैंड्स नहीं मांगे। मैं हैंड्स नहीं मांगती थी। हालांकि हमने इस यूरोप में कई सेंटर्स खोले, लेकिन हम वहाँ के लोगों को ही निमित्त बना देते थे, या अपनी जर्मनी की बहनें पहले वहाँ रख देते थे। तो ये बहुत खुश होते थे कि तुमने कभी हैंड नहीं मांगे। तो अनेक अनुभव हैं, दादी कुमारका के साथ भी अनुभव हैं, सभी दादियों से हम मिले हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कई जो नई नई चीज़ों के जो एडिशन हुई है अपने यज्ञ में, वो जैसे जर्मनी से शुरू हुई है। जैसे कि सबसे पहला रिट्रीट सेंटर हमारे संस्था का ये फ्रैंकफर्ट में ही था, और ये भी बहुत सुंदर एक बात है, कहानी है। तो वहाँ भी फिर दादी आए थे। वो सिर्फ आधे घंटे के लिए आए थे। वो किसी साथ वाले शहर में थे, उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आधे घंटे के लिए आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है आइए। और आए तो 3 दिन रहे। कहते मैं नहीं, यहाँ से नहीं जाना है। तो दादी को बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद सारे यज्ञ में ये रिवाज चला रिट्रीट सेंटर्स का। तो अब दादियों की बात करेंगे तो खास मतलब खजाने अनुभव ही हमारे खजाने हैं, वो बेहद के हैं। और उनके जीवन से बहुत पाया, लेकिन विशेषकर मुझे वाइब्रेशन इनकी बहुत अच्छा लगता था। और दादी गुलजार के साथ तो मैं रही भी हूँ, दिल्ली में रही हूँ बाय द वे, इन कमला नगर सेंटर। 1 महीना उनके साथ रही थी, एक ही कमरे में। हम भी हैड 1 रूम टू शेयर। और उनके वाइब्रेशन, दादी गुलजार के क्या अव्यक्ति वाइब्रेशन थे, मुझे पहले दिन से महसूस होते थे। तो हाँ, सॉरी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। तो हाँ जी, और कुछ पूछिए। आप कह रहे हैं कुछ एक सवाल, कुछ एक जी कुछ एक सवाल तो है दीदी, बट टेकिंग केयर ऑफ द टाइम आल्सो, एंड हम उसको रखते हुए फिर क्लास के क्वेश्चंस को भी यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। बाकी आपकी क्लास से आई एम श्योर बहुत सारे थैंक यू नोट्स हैं हमारे पास, उनको भी हम सारे पढ़ नहीं पाएंगे, बट yes they are saying that they could actually experience while you were narrating your story, मतलब they were actually experiencing those 5 forms. So that sums up everything. Thank you दीदी। थैंक यू जी। और अब इसके साथ ही हम सर्वशक्तिवान को, स्नेह के सागर को गीत के माध्यम से याद करते हैं, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति। ओम शांति।
शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते हुए वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जान निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। Om Shanti. Thank you, Lily, and thank you all of you.